Good morning, one and all. All dear students, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Are your parents with you? Yes, sir. Yes, sir. I think there is sufficient number of participants has now joined the meeting, almost 50. Now we can start the proceedings. So may I request Mrinal Dange madam to start the proceedings? Sir. Yes, sir. Madam, is she here? Yes, Can sir. Yes. Okay. So please start the program. Yes, sir. Hello. Hello. We can hear you. We can hear you, madam. Yes, sir. Good morning, everyone. I, morning, Dr. Mrinal Dange, lecturer in Sharir Rachna. Am I hearable to all? Yes, you are audible. You are audible. Yes. Good morning, everyone. I, Dr. Mrinal Dange, lecturer in Sharir Rachna, welcome all the students and parents on behalf of Jupiter Ayurved Medical College, Shankarpur, Nagpur. I also like to welcome Honorable Secretary Tarini Nikhare Madam and our Principal Dr. Subhash Wage Sir and all teaching faculties. Jupiter Ayurved Medical College, Nagpur was established by late Mr. Ramakrishna Nikhare under Gurudas Shikshan Sanstha in year 2001. After his sad dismiss in year 2012, his wife Mrs. Tarini Nikhare has successfully running and growing this institute. This is the only institute in central India where we will get the opportunity to learn the Ayurveda in English. As we all of us know that today we gather here for the 15 days transitional program as per the direction of CCIM. This program is orientation program for first year students so that the newly admitted students can get proper orientation about the BMS course and Ayurveda and their future career opportunities. So this program will help all of you to become more comfortable about the course. Am I audible? Yes. Go on, please. In Puranas, Lord Dhanvantari is mentioned as God of Ayurveda. He, during the Samudra Manthan, arose from the ocean of milk with the nectar of immortality. I like to pray Lord Dhanvantari Stavan for seeking blessing for sound health. Before moving further the transitional program. Now please, we are praying for the Lord Dhanvantari. I am shifting to this on Dhanvantari Stavan. So please pray Lord Dhanvantari. Hardware sir, please play the prayer of Lord Dhanvantari from your side. Yes, madam is about to play the video. Sir, I will. Just a few minutes. Sir. Just start the screen sharing. Yes, sir. Sir, is this audible? No, ma'am. No, once. So till then, I think most of the parents they have also joined. So we need not to communicate in English each time with parents. Be comfortable with the local language. Use the local language to communicate with the parents. And till then, till the tune starts, I can say something. So the Lord Dhanvantari is our Upasya Devata. Lord Dhanvantari, the first incarnation came from the Samudra Manthan with the Amrut in his hand, Amrut Kalash, nectar. Can you run it? The second incarnation of Lord Dhanvantari is the Kashi king.
who himself declared that he is the reincarnation of the Lord Dhanvantari and started the surgical school there in Kashi. His famous disciples were Sushruta, Gopur Rakshit, Karveer, Aupadhanaiva, Garg, Galav, etc. And those sages, they further passed down this knowledge of Ayurveda to their disciples. Earlier, the knowledge was in Shruti form, means one has to hear and hear it from their gurus, teachers, and master it. Yeah, So this is part of Shruti. I'm just about to begin the Dhanvantari Stavan. Please just make sure whether it is audible to you or not. Okay, let us pray to Lord Dhanvantari. It is our main god. Is it audible? नमामि धन्वन्तरीरादिदेवं सुरासुरवन्दितपादपद्मं लोके जरारुक् भयमृत्युनाशं दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुदं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्. Now I introduce our principal, Dr. Subhash Wage, sir. Dr. Subhash Wage, BMS from GAC, Nagpur 91 batch, MD Rog Nidan 2001 from Nagpur. Now Professor and HOD in Nidan Department, Jupiter Ayurved College, Nagpur. He is PhD scholar also. He is diplomat in Vedang Jyotish, medical astrology, manuscriptology, and paleography. BA in history, MA in psychology. He had worked at many Ayurvedic and modern hospitals. He presented papers at various national and international conferences. He twice got the Best Paper Award. He wrote 13 Ayurvedic books, out of which 3 books got Best Book Award. He reviewed 8 Lost Sahitas and was felicitated at Latur by Ayurveda Update Group, Latur, for reliving the Lost Sahitas. He had edited and translated unpublished Sanskrit manuscript of Nidan Grantha called Hansraj Nidan. His book on integrated approach to clinical method in Ayurveda got prestigious Best Book of the Year award from Ranade Foundation, Pune. His book on innovative approach to differential diagnosis in Ayurveda got the Best Scientific Book on the Year of the Year award from Ranade Foundation, Pune. He was the part of term for framing technical terminology of Nidana by Human Resource Ministry, GOI. He was invited as guest speaker at various places like NIA Jaipur,
गव्हर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज बिलासपूर, रायपूर, IAA पुणे, IIA दिल्ली, BAMC नागपूर, DY पाटील स्कूल ऑफ आयुर्वेदा, मुंबई KLE युनिव्हर्सिटी, बेल्जियम, SGT युनिव्हर्सिटी, गुरुग्राम, Parul University, Gujarat. Also took lectures for foreign students of Brazil, Portugal, Russia at International Academy of Ayurveda, Pune. Now I request respected principal sir to give their speech to our student. So sir, please. Thank you, Mrinal, for your precise introduction of mine. This is not, we are not supposed to give speech to this time, but it's an open discussion with the parents as per the curriculum, and we will accordingly conduct the discussion with the students and first with the parents. Actually, we will see their concerns. So I request all the parents that the dais is open for them, and they can have interaction with our staff regarding their queries. So parent लोगों से विनती है कि वो अपना अपना जो भी प्रश्न है, उनके मन में जो भी उनके बाल्य को लेके कुछ प्रश्न है, कुछ दुविधा है, कोर्स के बारे में कुछ जानना है, तो वो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। ये खुला मंच है, आपके लिए ही ये 1 घंटे का कार्यक्रम आपके लिए ही रखा है। स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Yes, sir. हाँ, अपने पेरेंट्स को इसमें लाइए, चर्चा में लाइए आपके थ्रू ही, और हम उनसे चर्चा करेंगे। उनके कुछ सवाल होंगे, उनके मन में कुछ डाउट्स होंगे, तो उसका यथामति जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप प्लीज उनको इस चर्चा में शामिल कीजिए। Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. हाँ हाँ, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। Hello, sir. आ रही क्या सर आवाज? बहुत कम आ रही है। अच्छा। हेलो सर, ये थोड़ा बुक्स वगैरह कनेक्टिविटी में जाइए, जहाँ अच्छी कनेक्टिविटी है वहाँ पे थोड़ा सा ओके बोलिए। अच्छा, ठीक। हेलो सर। हेलो सर. हाँ, नाउ आई कैन हियर यू। हाँ, बोला। हा, मी का म्हटलं सर, हे बुक्स वगैरे बाहेरून घ्यायचे आहेत का कॉलेजमधूनच मिळेल सर? नाही, बुक्स असं आहे नाही, हा प्रश्न विद्यार्थ्यांचा आहे ऍक्च्युली। याच्यावर आम्ही डिस्कशन ऑलरेडी केलेलं आहे की जे ऑथरचे पुस्तकं आमचे शिक्षक सांगतील त्या ऑथरचे पुस्तकं घ्या, कारण बऱ्याच मुलांना आता कोणते पुस्तकं घ्यायचे हे माहित नाही। बऱ्याचदा ते काय बाकीच्या कॉलेजला ज्यांची ऍडमिशन झाली, त्यांचे मित्र असतील तर तिथे विचारतात आणि त्याप्रमाणे ते पुस्तकं घेतात। परंतु बाकीच्या कॉलेजमध्ये ना आमच्यामध्ये फरक आहे की आमचं कॉलेज हे इंग्लिश मिडियमचं कॉलेज आहे आणि इंग्लिश विषयीची आयुर्वेदाचे पुस्तकं थोडे लिमिटेड आहे। त्यामुळे त्या बाबतीत तुम्ही आमच्या शिक्षक वृंदाचं मार्गदर्शन घेतलेलं सगळ्यात जास्त चांगलं राहील। आणि कॉलेज काही तुम्हाला जर काही त्यांनी पॅकेज दिलं असेल, मॅनेजमेंटने त्या पॅकेज मधून काही पुस्तकं दिली असतील तर ते सुद्धा तुमच्या कामाचेच राहणार आहेत, त्यात काही वाद नाही। ठीक आहे सर। चला पुढील प्रश्न घेऊया। Sir, student can ask questions. हाँ,
Hello. Students can ask questions now. For students, after the lunch, we are having a separate program. There we will solve all the queries of students. This session is for exclusively for parents, and we are expected to interact with them so that we can solve their some issues or some of the queries if they are having. Okay, sir. Thank you. So please ask your parents to join. They can ask whatever the queries they are having in their mind. In local language only, Marathi or Hindi, they can ask. Join with your parents first. Let's see. Let me know them also. All students, can you hear me? Yes, sir. So ask your parents to join the meeting through you. Today's is a inaugural session, informal session, and let's have an informal talk. Just to know each other and just to match our wavelength. Come forward, please. नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे बुक्स कॉलेज में बोले गए थे कि बुक्स वहां से मतलब वहां से लेना पड़ेगा। अच्छा, नहीं बुक्स का कोई ज्यादा इशू नहीं। अगर मान लीजिए उन्होंने कोई पैकेज में आपको दिया भी होगा ऑलरेडी, क्योंकि पिछली बार तक जो भी प्रैक्टिस रही होंगी, इस बार से मैं ये जनवरी से ज्वाइन हुआ हूँ जी। तो पिछला जो प्रैक्टिस हुआ होगा तो उस हिसाब से उन्होंने वो दे दिया होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर वो हिंदी या मराठी के बुक्स होंगे तो उसको मैटर को समझने में आसानी होगी। और वैसे भी एक एक सब्जेक्ट की दो दो तीन तीन बुक रहती है प्रोफेशनल कॉलेज में। वो कोई इशू नहीं कि एक ऑथर एक ही बुक रहती है, ऐसा नहीं है। कभी भी एक विषय की दो दो तीन तीन बुक्स लेके ही पढ़ा जाता है। और हमारे लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स है जिसको बच्चे रेफर कर सकते हैं फिजिकली आने के बाद। अभी चूंकि इशू है सिर्फ ये जो एक्सेप्शनल सिचुएशन निर्माण हो गए हमारे देश में कोविड के कारण, इस वजह से हमको ये ऑनलाइन करना पड़ रहा है। नहीं तो हमारा ये भी मकसद, अभी ये ट्रांजिशनल प्रोग्राम भी ऑफलाइन ही करने का मकसद था, तो उस वक्त उनको बुक से भी इंट्रोड्यूस कर दिया रहता। तो अभी वो इंग्लिश के भी बुक्स ले सकते हैं, वो बुक्स भी वो रेफर कर सकते हैं। इसलिए बुक्स का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। नहीं, क्या होता है सर, हम पेरेंट्स है ना, हम लोगों को बजट का भी देखना पड़ता है ना। तो यहाँ से भी बुक्स खरीदेंगे फिर कॉलेज से भी खरीदेंगे तो डबल हो जाता है। तो आप बोल रहे हैं जैसे कि डबल चलती है, बुक्स रहती है। हाँ, बुक्स तो काफी, अभी प्रोफेशनल कॉलेज में एक सब्जेक्ट के लिए दो दो तीन तीन चार चार बुक्स रेफर करते हैं। अच्छा। हाँ, और मेडिकल की बुक्स थोड़ा सा महंगी होती है अभी। तो बाकी जो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ने जो ऑफर की वो सस्ती बुक होगी। बाकी अदरवाइज मॉडर्न की बुक्स 2000-3000 इस लेवल पे भी जाती है। अभी जो टीचर बोलेंगे वो बुक्स खरीद लेना हम लोग। हाँ, टीचर जो बोलेंगे वो बुक्स आपको खरीदना ही है, क्योंकि आफ्टर जो उनको स्टडी जो करना है बच्चों को, वो टीचर के मार्गदर्शन में ही करना है। जी सही है, ठीक है सर। और टीचर ने क्या है, वो सारे बुक्स देखे हुए रहते हैं कि उसमें से वो सारे बुक्स को पढ़ने के बाद उनके बच्चों के लिए सबसे अच्छा बुक कौन सा रहेगा,
हाँ उसके उनको एक्सपीरियंस बाद ही रहता है वो ना। उन्हें वो रिकमेंड किया रहता है। और हमारे टीचर बिल्कुल एब्सोल्युटली टोटली प्रोफेशनल अप्रोच वाले हैं, वो बच्चों को सही मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है ना। अभी एडमिशन प्रोसेस का पूछना था, एडमिशन प्रोसेस अभी कैसे करेंगे सर, बाकी का जो रहा हुआ है जैसे? ना, एडमिशन प्रोसेस खत्म हो गया, एडमिशन प्रोसेस का भी कोई ये नहीं रहा, नहीं रहा ना, हो गया ना वो, अभी कुछ हो गया, कॉलेज आने कंप्लीट की हो गया। कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मैंने जैसा कहा ना कि कॉलेज तो शुरू हो गया रहता बच्चों का, अभी डिसेक्शन वगैरह सब स्टार्ट हो गया रहता, बट प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारे देश में एक ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन निर्माण हो गई है कोविड पैंडेमिक के कारण, जिस वजह से हम सभी लोग परेशान हैं, आक्रांत है, और क्लासेस ऑफलाइन शुरू नहीं कर पा रहे। अब जी। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शुरू कर किए जाए, पर अभी गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 15 दिन का लॉकडाउन की घोषणा की है। जी। चलो हम सपोज करते हैं कि ये 15 दिन तक ये लॉक, तो तब तक हमारा ट्रांजिशनल प्रोग्राम ही खत्म हो जाए ऑनलाइन, और उसके बाद सिचुएशन कुछ इम्प्रूव हो तो हम ऑफलाइन पढ़ाना शुरू करें। ठीक है। हाँ बोलिए। बोलिए जी, किसी के मन में और कोई डाउट पूछते रहिए, जो भी सवाल है। सवाल पूछते वक्त अपना वीडियो ऑन कीजिए ताकि फेस टू फेस बात हो सके। क्या हम अगला प्रश्न ले सकते हैं और ज्वाइन हुए हैं? Dear students, please ask your parents to join the meeting. It is exclusively arranged for them. Don't miss this opportunity to interact. Let's have their doubts clear whatsoever. Come forward. Don't hesitate. मी काय म्हटलं सर, हा. हॉस्टेल फॅसिलिटीज वगैरे सर काय? हा, हॉस्टेल फॅसिलिटीज मुलींसाठी आहे, फर्स्ट इयरला कंपल्सरी आहे, हा. आणि ती शहराच्या मध्यभागी आहे, त्यामुळे काही तसं घाबरण्याचं कारण नाही, सुरक्षित ठिकाणी आहे. आमच्या कॉलेजलाही हॉस्टेल आहे, परंतु कॉलेज सध्या कसं गावाच्या बाहेर असल्यामुळं आणि हा. तिथे खूप जास्त वस्ती दाट नसल्यामुळे तिथे ठेवलेलं नाही आहे, परंतु बरं. सिटीमध्ये आम्ही खांबल्याला ते अरेंजमेंट केलेली आहे आणि सुरक्षित आहे एकदम. मुलांसाठी पण सर? मुलांसाठी नाही, मुलींसाठी आहे, आणि फक्त मुलींसाठी? सगळ्यात मेन प्राईम कन्सर्न असतो मुलींच्या सुरक्षिततेचा, त्यामुळे ते मुलींसाठी, बाहेरगावच्या मुलींसाठी एक्सक्लुझिव्हली ठेवलंय. मुलं रूम करून राहू शकतात. बरं, ठीक आहे. थँक्यू सर. आवश्यक आहे तसं नाही.
चला सांगा लवकर पालक वर्गाला जॉईन व्हायला मुलांना. काही हेजिटेशन ठेवू नका, मोकळ्या मनाने चर्चा करा. तुमची काय शंका कुशंका असतील, आई असतील, वडील असतील, कोणी जे कोणी तुमच्या सोबत असतील त्यांना जॉईन व्हायला सांगा. आपण एक इन्फॉर्मल बोलूया. अनम्यूट करा, तुम्हाला अनम्यूट करा. तर नमस्कार, बोला. तुमचा जो माईक आहे ना तिथे त्याला अनम्यूटची बटन दाबा. हा सर, शिष्यवृत्तीचा फॉर्म भरायचा राहिलाय. बरं, हा सर, तर तारीख किती आहे सर शिष्यवृत्तीची फॉर्म भरण्याची, काही कल्पना? म्हणजे तारीख जे आहे ना, आता मध्यंतरी आम्हाला जे न्यूली ऍडमिटेड स्टुडंट्स होते, हा सर. कॉलेज सुरू होण्याच्या अगोदर सुद्धा त्यांच्या जे काही जागरूक पालक होते त्यांनी ऑफिसमध्ये संपर्क केला. ऑफिसमध्ये संपर्क करून शिष्यवृत्तीचा फॉर्म घेऊन गेले, सही पण घेऊन गेले माझी. बरं सर. हा, मग आणखी तारीख असेल तर मला भरून वाटते घेता येईल काहीतरी का? ते 30 तारीख त्यावेळेस ऍडमिशन झाल्यानंतर 21 मार्चची जी ऍडमिशन होती त्यानंतर हा. 30 तारीख ही शेवटची तारीख होती असं त्यांनी सांगितलं गव्हर्नमेंटने. परंतु ते एक्सटेंड होईल. बरं परंतु 30 तारखेच्या आतही काही लोकांनी नेलं, ते तुम्ही बरं. वेळच्या वेळी घेऊन जायला पाहिजे, हो सर, जरी मुलांचे क्लास सुरू नाही झाले तरी पण. ठीक आहे सर. फक्त बोनाफाईड तेवढं जर आम्हाला ते व्हॉट्सअपवर येऊया, किंवा बोनाफाईड वगैरे सगळं मिळेल. तो शिष्यवृत्तीचा काय विषय आहे ते तुम्ही लवकरातल्या लवकर ते फीज विषय सगळं फॉर्मॅलिटी पूर्ण करायला पाहिजे. बरं सर. त्यात म्हणजे तुमचंच हित आहे. नाही, आता आम्ही नांदेड फार लांब राहतो, नांदेडला असतो, त्याच्यामुळे आता फक्त बोनाफाईड जर बरं. मिळाला आम्हाला व्हॉट्सअपवर जर आज इकडे प्रिंट काढून घेऊन आम्ही भरू शकलो असतो. त्यांना शिष्यवृत्तीच्या ऑफिसला तुम्ही एकदा कॉन्टॅक्ट करा आणि त्यांना हे विचारा की डेट काही एक्सटेंड झाली आहे का म्हणून. बरं सर. या अनुषंगाने आमच्याकडून जे काही तुम्हाला सहकार्य लागेल बोनाफाईड स्टुडंट्स वगैरे म्हणून, किंवा त्या शिष्यवृत्तीच्या फॉर्मवर सह्या पाहिजे असेल तर त्या ऑफिसमधून तुम्हाला लगेच मिळून जाईल. हो सर, तारीख 30 तारीख झाली म्हणून समजलं बाहेरून. 30 एप्रिल पर्यंत आहे म्हणून समजलं. ठीक आहे सर, थँक्यू. पुन्हा काही कोणाचे प्रश्न? चला अन्य पालकांसोबत चर्चा करूया. चला, प्रश्न नसतील तर कमीत कमी नमस्कार चमत्कार तरी करूया सगळ्या पालकांशी. मुलांना सगळ्या आपापल्या पालकांना आणा याच्या आपल्यावर मीटिंग मोडवर. हॅलो सर. हॅलो.
हॅलो. किती जण जॉईन झालेत? हेलो सर. हाँ हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि इन लोग का एकेडमिक ईयर कितने साल तक, मतलब ये जो अभी अभी शुरू हुआ है. आपका वीडियो ऑन कीजिए। कहाँ से है? अपना परिचय दीजिए पहले। हाँ हेलो सर, मैं पूजा गुप्ता की. ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। हाँ हेलो. जी नमस्कार, बोलिए। हाँ हेलो सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मेरे को ये पूछना था कि इन लोग का भी एकेडमिक सेशन कैसे चलेगा, क्योंकि अभी अभी शुरू हुआ है अप्रैल में. तो हाँ, एकेडमिक सेशन अभी ये जो नई बैच के लिए है ना, ये 1.5 साल का है कि उसका हाँ. फिर भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा आने का है, बट ये इस साल से 1.5 साल का कर दिया है। अच्छा अच्छा. तो इनका जो है अगले ठंडकाले में, मतलब दिवाली में इनका एग्जाम होने का प्रस्तावित है। यानी ये अप्रैल से 1 अप्रैल 1 सेशन होगा, उसके बाद अक्टूबर विंटर तक इनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा। और होपफुली अभी ये सिचुएशन हमारे देश में जो प्रिवेलेंट है, जिसके बारे में हम सब चिंतातुर है, होपफुली ये 3-4 महीने में अगर क्लियर हो जाता है अच्छे से, तो होपफुली 20 जून या उसके ऑनवर्ड्स होना, या जुलाई ज्यादा हो गया तो जुलाई से होना ही चाहिए। अदरवाइज भी हम फिर सारी प्रिकॉशन के साथ, अगर एट ऑल फिर सिचुएशन ज्यादा इम्प्रूव नहीं होती है, तो फिर आप पेरेंट लोगों को पूछ के, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये पेरेंट्स लोगों के ऊपर छोड़ा है कि वो अपने पालने को भेजना चाहते हैं कि नहीं। अगर वो भेजना चाहते हैं तो सारी प्रिकॉशंस देखिए, जैसे मास्क का वापर है, सैनिटाइजर का वापर है, सोशल डिस्टेंसिंग का वापर है, ये सारी चीजों को पालन करते हुए हम क्लास शुरू करते हैं। वैसे भी हमने ये जनवरी से, जब सीसीएम का नोटिफिकेशन आया था, तो 4 जनवरी से लेकर लगभग 15 मार्च तक हमने ऑफलाइन क्लासेस लिए बच्चों के, जो रेगुलर आ रहे थे उनके। तो जो खुद वो के विलिंग है, तो हम उनके लिए तो लेने के लिए तैयार है। हमारा स्टाफ भी इन टाइम रेडी है। अभी ये सब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, और आप लोगों की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने पाले को इस सिचुएशन में भेजना चाहेंगे, तो हम शुरू कर सकते हैं इस सारी प्रिकॉशन का पालन करते हुए। ठीक है सर, इनका सेमेस्टर पैटर्न होने वाला है या एनुअल पैटर्न है? एनुअल पैटर्न है, मगर 2 एग्जाम उसमें होती है विद्यापीठ की, और कॉलेज से उसका इंटरनल असेसमेंट भी होता है, उसके मार्क्स भेजे जाते हैं। मतलब सेमेस्टर पैटर्न जैसा चलेगा, 3 मंथ्स का? सॉरी. नहीं, ऐसा जो सेमेस्टर आप ये समझ रहे कि 3-3 महीने बाद एग्जाम होगी, ऐसा नहीं होगा। ओके, एनुअल पैटर्न है. हाँ, एनुअल पैटर्न। ठीक है सर. और कॉलेज में आप लोग प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट करने वाले हैं? वही मैंने अभी आपको बताया ना, सारी बातें समझा कि कॉलेज शुरू हो गया तो प्रैक्टिकल तो हर दिन है। अच्छा. फिजियोलॉजी नहीं का सर, अभी प्रैक्टिकल ऑनलाइन है, क्लासेस एनाटॉमी का कंटिन्यू प्रैक्टिकल है, ये सब प्रैक्टिकल आपको फर्स्ट ईयर से ही है बच्चों को, और रेगुलर है वो। नहीं, अभी ऑनलाइन क्लासेस चालू है ना सर, इसलिए प्रैक्टिकल का पूछा. नहीं, जैसे ही हमारा ट्रांजिशनल प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, हम तो वी विल स्टार्ट विद क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस हमारे स्टार्ट होगी, मगर अभी प्रैक्टिकल जो है, जो फिजिकली आके करना पड़ता है, उसके लिए वो, या हम इतना कर सकते हैं कि फिजिकली, मतलब ऑनलाइन उसको समझा सकते हैं कि इसी प्रकार से किया जा सकता है, मगर वो जैसे डिसेक्शन है, कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ये होती है, डिसेक्शन खुद ही करना पड़ता है ह्यूमन बॉडी का, तो उसके लिए बच्चों को आना ही पड़ेगा। ठीक है सर. ठीक है फिर सर, भी थैंक यू. जितना हो सके एटलीस्ट फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल हम लोग आपको ऑनलाइन करके बता सकते हैं कि किस तरह से किया जा सकता है, क्या क्या करना चाहिए। मगर पहले देखेंगे कि मैक्सिमम पोर्शन हम, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो ऑनलाइन करने की कोशिश करेंगे, और
कुछ जब तक कि सिचुएशन नहीं सुधरती, और सिचुएशन सुधरते बराबर प्रैक्टिकल करेंगे हम। ठीक है सर। पिछले Thank बैच you, में sir. भी ऐसा ही हुआ था। एक हमारे यहाँ सेकंड ईयर की बैच थी जिसमें एक रसशास्त्र सब्जेक्ट होता है, उनके बहुत सारे प्रैक्टिकल नहीं हुए थे पिछले साल लॉकडाउन लगने के कारण। मगर जैसे ही 4 जनवरी को कॉलेज हमने ऑफलाइन स्टार्ट किया, तो 4 से 20 फरवरी के बीच में हमने उनके 54 प्रैक्टिकल्स एक साथ करके दिए। एवरीडे पूरा एक्स्ट्रा क्लासेस लेके हमने उनके पूरे प्रैक्टिकल करवा दिए। सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम सिलेबस तो हम पूरा कंप्लीट करेंगे। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much. चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी के मन में कोई शंका? चलिए ऑनलाइन आइए, सबके पेरेंट्स से कम नमस्कार तो ले ले। ये नमस्कार सर। तुमचा आवाज येत नाही आहे, त्या अनम्यूट बटनला क्लिक करा। बोला। हॅलो सर. हा येतोय आवाज मला आता, बोला। हा सर, ते स्कॉलरशिपचं फॉर्म तर भरला आहे ओपन मध्ये. बरं. तर ते सर ऑनलाईन सबमिट तर झाला आहे, पण तुमच्या कॉलेजला स्टुडंटला पाठवलं होतं 2-3दा, पण सर तुमची भेट नाही झाली होती, तर तुमची सिग्नेचरची वगैरे आवश्यकता होती का सर? बरं. तर ते प्रोसेस झाली नाही सर, फक्त ऑनलाईन सबमिट झालं आहे स्कॉलरशिपचं फॉर्म ओपन मधून बरोबर. सर. तर तुमची सिग्नेचर नाही झाली होती. तुम्ही आता जे सांगितलं एका पॅरेंट्सशी बोलले आहेत, तर माझी हो. सिग्नेचर घेऊन गेलेत ते म्हणून. त्यावेळेस येऊन गेले ना, ऍडमिशन झाल्याबरोबर लगेच हा इश्यू पण होता आम्हाला, की त्यावेळेस तर म्हणजे पूर्ण ऍडमिशन व्हायच्याच होत्या, तर त्यांनी येऊन तो सिग्नेचर पण घेतली. हो का? तर आम्हाला, मी पॅरेंट्स स्टुडंटला पाठवलं होतं सर दोन, पण तुम्ही भेट न झाल्यामुळे तुमचे सिग्नेचर हा, नाही तो झाले. तुम्ही कुठे कॉलेजमध्ये पाठवलं होतं की तिकडे आमचं त्या खामला ऑफिसला पाठवलं होतं? कॉलेजला सर, कॉलेजला. तर तुम्ही कॉलेजला तर मी नेहमी असतो ना, कॉलेजला भेट न होण्याचं कारणच नाही. आता कसं आहे, स्टुडंट पाठवलं होतं तर भेटले नाहीत म्हणे सर, तर रिटर्न झाले चंद्रपूरवरून. तसं नाही करायचं. माझा फोन बघा, बाहेर गावून तुम्ही येत असताना हा, तिथं फोन असतो, तिथं ऑफिशियल स्टाफकडे फोन असतो, सर्वांकडे फोन असतो. मी तिथे राऊंडला असतो. अच्छा आजूबाजूला कॅम्पस मध्ये कुठे हॉस्पिटलला राऊंड घ्यायला गेलो असेल, अच्छा सर. फोन करायचा, माहिती दे ऑफिशियल स्टाफला सांगून ठेवायचं की स्कॉलरशिपच्या कामासाठी आलोय, आम्हाला सिग्नेचर हवी आहे म्हणून. थोडा वेळ थांबायचं तिथे. मुलगा स्टुडंट आला होता तर ते म्हणत होते की सर भेट नाही झाली म्हणे, त्यामुळे ऑनलाईन तर सबमिट झालाय सर. मग आता बाकी समोरची प्रोसेस काय करायची आहे सर? तो काही विशेष मुद्दा नाही आहे. फोन करून मला कधी पण भेटू शकतात. बरं, ठीक आहे सर. थँक्यू. हॅलो. हा बोला. तुमचा सर, व्हिडिओ ऑन करा. माझ्या मुलीला जरा. व्हिडिओ ऑन करा मॅडम. हो हो. हा, हॅलो नमस्कार. सर. हा, नमस्कार. मुलीला जर फर्स्ट इयरला, माझ्या मुलीला जर फर्स्ट इयरला हॉस्टेलला राहायचं नसलं, तर मग आम्ही रूम करून राहू शकतो ना? नाही, आता बघा तुम्ही याच्यामध्ये म्हटलं का फर्स्ट इयर. ऐकून घ्या, मुलींसाठी फर्स्ट इयरला हॉस्टेल कंपल्सरी आहे. नाही, आमचे रिलेटिव्ह असतात की नाही नाही तिथं. नाही, ते काही माझी आता पण जो कॉलेजचा नियम ठरलेला आहे
की मुलींविषयी ते काहीही ऍडजस्ट करायला तयार नाही. तिथेच कॉलेजची बस येईल, कॉलेजच्या बसने येणार, कॉलेजच्या बसने नेणार. सेकंड इयर पासून मग म्हणजे तुम्ही ऍडजस्टमेंट नाही, आपलं हॉस्टेल कंपल्सरी. फर्स्ट इयरला कंपल्सरी आहे. एकदा त्यांना सगळ्या गोष्टी अकस्टम झाल्या, सगळ्या गोष्टीशी परिचित झाल्या की मग सेकंड इयरला वाटल्यास ते नातेवाईकाकडे राहणं वगैरे ते करू शकतात. ठीक आहे. थँक्यू सर. हा. ओके. हॅलो सर. हा बोला. नमस्कार सर. हॅलो. नमस्कार नमस्कार. नमस्कार. मुलीचं ऍडमिशन झालं त्याच्याबद्दल धन्यवाद सर आपल्या कॉलेजला. बरं, धन्यवाद. तर आता समजा सर क्लासेस तिचं कधी सुरू होते? क्लासेस विषयी मी सांगितलं ना आता. बरं सर, ते आमचं गव्हर्नमेंट शासनाचे जे आदेश आहे ना त्याच्यावर सर्वस्वी अवलंबून आहे की वेळोवेळी काय सुरू होतात. तसं तर मेडिकल इन्स्टिट्यूशनला म्हणजे आम्हाला असं बंद ठेवता येत नाही. जर तुम्ही पालक लोक तयार असाल आणि सगळ्या दक्षता घेऊन जर आम्ही घ्यायला तयार आहोत आणि तुमच्या पाल्याकडूनही तशीच प्रकारची दक्षता घेण्याचं अपेक्षा केली जाते, ते जर तयार असतील तर आम्ही ऑफलाईन क्लासेस घ्यायला तयार आहोत. ओके सर. ओके सर, पण एक आता ऍडमिशनच्या वेळेस, हॅलो, हा ऐकू येतोय मला तुमचा आवाज. ऍडमिशनच्या वेळेस आम्ही चेक दिलेला आहे, ते म्हणजे आम्हाला डीडी पाहिजे. ते ऍडमिशनचं प्रोसिजर काय आहे मग तुमच्याकडे का नंतर ते? नाही, ते कसं असते, त्यांना जर डीडी हवा असेल तर तो डीडीच लागेल, चेक लागणार नाही. हा ना, मग ते कधी द्यायचं काय तुम्ही कळू सांगा आम्हाला का? तसं काही नाही. ते ऑफिसचा नंबर मी ग्रुपमध्ये शेअर केलेला आहे तिन्ही क्लर्कचा. तुम्ही त्यांच्याशी बोलून घ्या. मुलांच्या ग्रुपमध्ये मी शेअर केलेला आहे, त्यांना विचारून घ्या. तिन्ही क्लर्कचा नंबर दिलेला आहे, एकदा त्यांच्याशी बोलून मॅटर क्लिअर करून घ्या. ओके ओके सर. थँक्यू. हॅलो. 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 हा बोला. हा नमस्कार सर. नमस्कार. सर मी पुसादून बोलत आहे. बोला. हा, तर आम्ही काय म्हणतो सर, मी समजा स्कॉलरशिपचा जो फॉर्म आहे तो ऑनलाईन भरलेला आहे, ऑनलाईन सबमिशन झाला, सक्सेसफुली झालेला आहे तो. बरं. परंतु जो आता कॉलेजमध्ये जो सबमिशन करायचा आहे समजा तो, अच्छा, तो नंतरही केला तरी चालेल ना? ते तुम्ही सही वगैरे राहिले आहे सर. हे बघा, आम्ही कॉलेजच्या क्लर्कचे नंबर दिले आहेत 3 ग्रुपमध्ये मुलांना. त्या 3 पैकी कोणालाही तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून घ्या आणि त्याच्याविषयी पूर्ण माहिती जाणून घ्या. फक्त सर सिग्नेचर, तुमची सिग्नेचर राहिलेली आहे. सिग्नेचर वगैरे होऊन जाईल, काही मोठा इश्यू नाही आहे. पण त्यांना पहिले विचारून घ्या की तो तुमचा जो ऑनलाईन सक्सेसफुल झालेला आहे त्याची प्रिंट काढून तुम्हाला इकडे मेल करता येईल आणि तो कॉलेजमध्ये जमा करता येईल. तर त्याविषयी त्यांना तुम्ही विचारून घ्या. म्हणजे त्याच्यावर मेल करून दिलं तरी चालेल समजा कॉलेजमध्ये? हा, सध्या. आणि नंतरची प्रोसिजर काय आहे ते पण विचारून घ्या. कारण ते स्कॉलरशिपचं बघा, ते इश्यू क्रिएट करतात आणि नंतर ते स्कॉलरशिप यायला पुष्कळ उशीर लागतो. म्हणजे 2-2, 3-3 असं झालेलं आहे की 2-2, 3-3 वर्ष ती स्कॉलरशिप आलेली नाहीये. हा, तर त्याच्या बाबतीत थोडंसं प्रॉम्प्ट राहा. तिथे त्यांच्याशी पर्सनल कॉन्टॅक्ट करावा लागतो. आता मॅडमला बोललो होतो एकदा आम्ही, तर ऑनलाईन वगैरे भरताना, तर मॅडमनं काही तेवढं काही इन्फॉर्मेशन दिली नाही आम्हाला, लोखंडे मॅडम काही. नाही, तुम्ही मॅडमशी नका बोलू. ते क्लर्क आहे ना, जे हे मॅटर बघतात नेहमी स्कॉलरशिपचं, त्यांच्याशी बोला. हो का? आणि ऑफलाईन वगैरे कधी होईल सर कॉलेज सुरू मग? ऑफलाईन क्लासेस मी आताच बोललो ना की ऑफलाईन क्लासेससाठी सर्वस्वी गव्हर्नमेंटने हे पालक लोकांवर ठेवलेलं आहे की ते. आणि कसं आहे, बाकीचे कॉलेज तर कंपल्सरीली गव्हर्नमेंटने बंद केले, परंतु मेडिकल इन्स्टिट्यूशन ऍज सच बंद करता येत नाही. त्यामुळे जेवढे काही MBBS, आयुर्वेदिक, युनानी आणि होमिओपॅथिक कॉलेजेस आहे हे चालूच आहे. आमचं कॉलेज तसं चालूच आहे अजून. शिक्षक वृंद येतात. हा, परंतु आता विद्यार्थ्यांचं असं आहे की ते त्यांच्या पालकावर सोडलेलं आहे गव्हर्नमेंटने. त्यांचे पालक जर, म्हणजे आम्ही त्यांना कंपल्शन करू शकत नाही. बरोबर आहे ना सर, कारण आता पोझिशनच खराब आहे ना. लोकांची जर इच्छा असेल आणि सगळ्या प्रकारची दक्षता घेऊन जर सुरू करायचं असेल तर ते करता येईल. आणि सर ऑनलाईन क्लासेस होईल. आणि पुस्तक वगैरे कसं काय मग? बुक्स वगैरे पुस्तकाचं आमच्या शिक्षक वृंदाने सजेस्ट केलेलं आहे ना ग्रुपमध्ये. पुस्तक सांगितलंय त्यांना कोणते पुस्तक घ्यायचे आहे म्हणून.
मग आम्ही बाहेरून घेऊ शकतो समजा. हा, तुम्ही घेऊ शकता. हो का? पुस्तक कसं आहे, आणि पुस्तक फी वगैरे जनरली आपली जी फर्स्ट प्रोफेशनल कोर्स मध्ये कसं असते की एखादं मॅटर एका पुस्तकात चांगलं असते, एखादं मॅटर दुसऱ्या पुस्तकात चांगलं असते, आणि एकाच विषयाचे बरेचसे पुस्तक पाहिजे. त्यासाठीच लायब्ररी नावाची संकल्पना असते की विद्यार्थी सगळे पुस्तकं घेत नाही, त्याला पुष्कळशे पुस्तकं लायब्ररीमधून उपलब्ध होतात काही काही रेफरन्सेससाठी. तर आणि पण एक दोन पुस्तकं तर स्वतःजवळ पाहिजेच असतात ना, त्या प्रत्येक विषयाशी निगडीत असलेले. त्यामुळे मॅनेजमेंटनी जरी तुम्हाला मराठीत आणि किंवा हिंदीत पुस्तकं दिलं असेल तरी पण तो आपला कोर्स इंग्लिशमध्ये आहे. एखादा विषय इंग्लिशमधून नाही समजला तर तो मराठी किंवा हिंदीमधून वाचता येतो विद्यार्थ्याला. हो का सर? आणि तिथं जर सुविधा वगैरे रूम वगैरे सर तिथं अवेलेबल आहे का तिकडे आजूबाजूला ते एरियामध्ये? आजूबाजूच्या कॉलेजच्या आजूबाजूच्या एरियात भरपूर रूम्स अवेलेबल आहे. चांगली नवीन वस्ती आहे आणि तिथे पुष्कळ साऱ्या रूम आहे विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी. इनफॅक्ट कॉलेजमध्ये सुद्धा हो का? हॉस्टेल आहे, परंतु आम्ही तो कॅम्पस आमचा खूप मोठा आहे, 8 एकरचा कॅम्पस आहे. परंतु तिकडच्या साईडनी वस्ती नसल्यामुळं मग आम्ही अजूनपर्यंत तरी त्याला असं ओपन नाही केलं. परंतु इकडे ज्या पहिले कॉलेजला सुरुवातीला जाताना वस्ती लागते, त्या वस्ती भरपूर मोठी आहे. त्याला पुनर्वसन वस्ती म्हणतात. तर तिथे पुष्कळ साऱ्या रूम अवेलेबल आहे, फ्लॅट अवेलेबल आहेत. हो का? आणि कॉलेजच्या जवळ केलं तर जास्त चांगलं राहील. हो सर, कारण तो एरिया काय दूर पडते की नाही, 2-4 किलोमीटर जवळपास. त्याने दूरही पडतो आणि कसं येण्या जाण्यासाठी कसं आहे की ते कन्व्हिनियंट राहील. जर कॉलेजच्या जवळ केल्या रूम तर ते येण्या जाण्यासाठी फारच कन्व्हिनियंट राहील. आणि तिथे सर्व फॅसिलिटी आहे, किराणा भाजीपालापासून सगळ्या गोष्टीचं अम्युनिटी जे आहे, आणि आता सर्वच हॉटेल बिटेल सर्वच फॅसिलिटी आहे. जवळपास फर्स्ट एक्झाम आहे ते जवळपास कधी होईल कॉलेजची आता? काय म्हटलं? एक्झाम जी फर्स्ट समजा आता यांचं फर्स्ट इयर यांची जी पहिली एक्झाम होईल आता. हो का? ठीक आहे सर. आणखी कुण्या पालकांना डाऊट असल्यास आपण त्यांचे प्रश्न घेऊया. मुलांनो सांगा पालक वर्गाला जॉईन व्हायला. हॅलो सर. हा, बोला सर.
बोला व्हिडिओ ऑन करा तुमचा. हॅलो हॅलो नाही नाही. हॅलो हॅलो. हॅलो सर या. हेलो सर. हाँ हाँ बोला. हाँ नमस्कार, मैं संजय रमापति कुंभार के बोल रहा हूँ. नमस्कार नमस्कार. नमस्कार सर. व्हिडिओ ऑन करा तुमचा. वीडियो सर नहीं, होस्ट डिसेबल बता रहा है. कौन होस्ट है वो डिसेबल बता रहा है, इसलिए वीडियो कॉलिंग नॉट अवेलेबल बता रहा है. वीडियो कॉल. नहीं नहीं नहीं, वो जो दो बटन है वहाँ पे, एक अनम्यूट की है वो आवाज की है, दूसरा स्टार्ट योर वीडियो है, उस पे क्लिक कीजिए. सर स्टार्ट वीडियो करो तो ये बता रहा है सर, यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट. ओके ओके ओके. डॉक्टर हाडोळे सर. हेलो हाडोळे सर इज हियर. त्यांना अलाउ करा मॅडम. Yes, sir. Yes. सुंदर सर जॉईन झाले वाटते. हो सर गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. मगापासून तुम्हाला शोधतच होतो, कुठे आहे तुम्ही. नाही सर, थोडस मला काल टेम्परेचर आलं होतं, थोडं उशिरा माझी तयारी झाली. बरं बरं ठीक आहे. पॅरेंट वर्गाशी चर्चा करत आहो आपण. हो सर हो सर. तर त्यांच्या प्रश्नाची त्यांनी पण काही विचारली, समर्पक उत्तरे द्या सर, तुम्ही पण लोक. बिलकुल सर. हा सगळ्यांशीच इंटरॅक्ट व्हायचं आहे. त्यांना काय काय क्वेरी कोर्सच्या बाबतीत वगैरे काय जे काही असेल, आता सुरुवातीला त्यांना बऱ्याच लोकांना काय विचारावं काय बोलावं याविषयी थोडासा संभ्रम असतो. बिलकुल सर. त्यांचा व्हिडिओ ऑन करा आणि त्यांना अलाउ करा. Yes, sir. हेलो नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार जी. हाँ संजय रमापति कुंभार के फादर बोल रहा हूँ सर. हाँ जी बोलिए. हेलो हेलो सर. हाँ हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन पा रहा हूँ आपको. कभी से ये अच्छा हाफ लाइन या ये अभी चालू हो रहा है इनका ये पढ़ाई, तो लोगों को कभी से वहाँ जैसे ज्वाइन करना होगा तो ये अपने ऊपर है कि कॉलेज के ऊपर रहेगा. नहीं नहीं, ये बात मैंने अभी बार बार मैं वही बात समझा रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेज बंद नहीं रख सकते. ये तो आप सब लोग तैयार हो गए तो कल से भी क्लासेस शुरू हो सकते हैं. मगर यहाँ गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अभी 15 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ, मगर इसके बावजूद इसमें बाकी सभी कॉलेजेस बंद कर दिया, मगर मेडिकल कॉलेजेस को इसमें छूट दी हुई है. Yes, sir. मगर ये उनके पालक लोगों पे छोड़ा है कि वो अपने बच्चों को भेजेंगे या नहीं भेजेंगे. अच्छा. अभी इनको हॉस्टल में रहना पड़ेगा, खुद का रूम लेके रहना पड़ेगा वहाँ पर. जो अगर मेल स्टूडेंट है तो उसको रूम करके रहना पड़ेगा. कॉलेज के आसपास में बहुत सारे रूम है, बहुत सारे फ्लैट्स भी है, वहाँ वो रह सकते हैं, 2-4 लोग मिलके भी रह सकते हैं. अच्छा, वहाँ जाने के बाद 2-4 मिलेंगे तो ना सर ऐसा होगा. यहाँ से अपने मिल जाएंगे दोस्ती, या उनके खूब जल्दी दोस्त बन जाते हैं. हाँ ये तो है सर. हाँ, वो 2-4 लोग मिलके एक फ्लैट भी ले सकते हैं. वहाँ पे फ्लैट भी सस्ते रेट में है कॉलेज के पास. ठीक है सर.
बहुत बहुत शुक्रिया सर। स्कॉलरशिप का फॉर्म हेलो सर। हाँ हेलो, स्कॉलरशिप का ये फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं सर, उसके लिए क्या है? आप फिलअप कर लीजिए। हमारे वो ऑफिस के स्टाफ से चर्चा कर लीजिए, उनके नंबर मैंने दिए हैं ग्रुप में, उनसे कांटेक्ट अच्छा कर लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से ठीक बात है। कर रहे हैं आप? मैं बॉम्बे नाला सुपारा से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी। हाँ सर, ठीक है सर, बहुत बहुत हाँ हाँ ठीक ठीक। ओके सर। हेलो, हाँ बोलिए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपको वीडियो ऑन कीजिए। जी। ओ, हेलो, हाँ हाँ बोला। बोलिए बोलिए। आ रहे सर आप? नमस्ते नमस्ते। आवाज आ रही सर आप? आ रही मुझे आ रही है आपकी आवाज। तो इसमें फादर बोल रहा हूँ मैं। जी अभी बोलिए। अपना सेकेंड ईयर की स्टूडेंट, तो उसको हाँ हाँ बोलिए बोलिए। एक स्कॉलरशिप और उसको वहाँ पे एक आपके पास सबसे बड़ी व्यवस्था ठीक रही है कि आप हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल में व्यवस्था दे रहे हैं। आपकी आवाज बहुत बहुत ही कम आ रही है। हॉस्टल में जो है, हाँ हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। हाँ ब्लू कलर। जी जी। हेलो, आ रही है आवाज? हेलो, हाँ जी बोलिए। एक तो हॉस्टल जो है प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं आप लोग, और दूसरी चीज उसको स्कॉलरशिप के लिए चाहिए फॉर्म। हॉस्टल स्कॉलरशिप मुझे कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है। मैं डायरेक्ट कॉल करता हूँ एक आपको। मिनट, वो स्निग्धा को ही बात करने दीजिए। क्या है, क्या वो आपका आवाज नहीं आ पा रहा बरोबर। बात
2 से 4 21 4 चलो अन्य पालकों से बात करते हैं। इक्कीस 2 से 4 और किसी को कोई जिज्ञासा? जल्दी कीजिए, फिर पालक लोगों के लिए यही एक समय है। उसके बाद तत्पश्चात सब कार्यक्रम पूरा स्टूडेंट्स लोगों के लिए होने वाला है। अभी 12 से 1 संस्कृतम वदतु करके आज हमारा संस्कृत से इंट्रोडक्शन है। उसके बाद लंच ब्रेक है। लंच ब्रेक के बाद 2 से 3 फिर और स्टूडेंट लोगों से चर्चा है, जिसमें सब स्टूडेंट लोगों का इंट्रोडक्शन लिया जाएगा, टीचर फैकल्टी का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, और कुछ हमारे यहाँ पहले से ही विद्यमान जो कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी आपसे इंटरेक्ट करेंगे, ताकि एक दूसरे का नाम पता चले। और फिर हम आज के लिए स्टॉप हो जाएंगे। कल से आपका करिकुलम स्टार्ट हो जाएगा। सो जो भी पालक अभी हम उनका कोई भी पूछा हो तो वो पूछ सकते हैं। और कोई पूछना चाहते हैं कुछ? और किसी के पालक वर्ग को कोई प्रश्न है? हेलो हेलो, हाँ बोलिए। आ रही है आवाज? अरे स्निग्धा का फादर बोल रहा हूँ। आपसे बात की थी क्या? आपने कहा बोलिए सर, बात नमस्कार। करने की थी। नमस्कार। एक इनका हॉस्टल प्रोवाइड होने का, दूसरा इनको स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म चाहिए। हाँ, तो स्निग्धा का क्या प्रॉब्लम है? उनको स्कॉलरशिप के सिग्नेचर नहीं मिली? नहीं। हाँ, तो क्यों नहीं मिली? वो तो कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट है। जाने से Yes. पहले लेना चाहिए था ना। हाँ, रेगुलर स्टूडेंट है वो। हाँ, तो जाने से पहले लेना भी चाहिए था ना। हम तो बहुत मोटिवेट कर गरीब रहे हैं उनको। बहुत सारा ऐसे कंपटीशन में उन्होंने भाग लिया हुआ है। 2-3 इसमें हमने खुद ही, हमारे शिक्षक वृंदों ने उनको मार्गदर्शन किया। उन्होंने अपना फेसबुक पेज बनाया है।
जी बहुत जी सा एक्टिव, बहुत सबसे मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट है कॉलेज के। जी, उसके बावजूद भी इनको स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है। और नहीं, स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है, ये गवर्नमेंट के तरफ से आप थोड़ा इस बारे में इंक्वायरी कीजिए। हमारे तरफ से जो सहकार्य चाहिए उसके लिए जो कुछ सिग्नेचर चाहिए, फॉर्म भेजना है, वो सारा हम करेंगे। फॉर्म नहीं दिए गए ना, फॉर्म के लिए नहीं, फॉर्म पैसा नहीं दिया गया ऐसा नहीं होता ना, जी। ऐसा नहीं होता। ऑफिस से फॉर्म लीजिए या नेट से होता वो डाउनलोड कर लीजिए, कंसर्न ऑफिस को कांटेक्ट कीजिए। ये सारी जिम्मेदारी स्टूडेंट्स की और उनके पालकों की है, जो जहाँ तक स्कॉलरशिप वगैरह जो कंसर्न है। बाकी हमारे तरफ से उनको मार्गदर्शन पूछिए कि उन्होंने और हॉस्टल के लिए कितने सारे एसेस को उन्होंने कॉम्पीट किया है, कितने सारे में हमने गाइडेंस दिया है उनको। नहीं, आपका बराबर हेल्प रहा है, लेकिन हमको ये हॉस्टल की जो आपके यहाँ प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। हॉस्टल नहीं मिला उनको फर्स्ट ईयर में, आप पूछिए उनको। नहीं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो है, फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिला कि नहीं? फर्स्ट ईयर में जो है कॉलेज, सेकेंड ईयर में नहीं मिला। हाँ, तो फर्स्ट हॉस्टल का जो है ना वो फर्स्ट ईयर में ही कंपलसरी है। फर्स्ट, लेकिन हॉस्टल कैंपस के अंदर वो हमारे तो यहाँ hostel था बहुत बड़ा हॉस्टल है कैंपस के अंदर, स्टूडेंट्स और बॉयज के लिए भी है। बट वो प्रॉब्लम ऐसा है कि कॉलेज थोड़ा सा शहर के बाहर होने के कारण, और अभी वहाँ जो है ना बस्ती नहीं गई, इसलिए वो विद्यार्थिनियों की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे। नहीं तो हमारे यहाँ तो कॉलेज 8 एकड़ में, मतलब उसमें कॉलेज के अंदर ही हॉस्टल है। हमको तो उसको देखे बहुत बड़ा बना, कहा गया था। दिक्कत वही है, सिक्योरिटी के इशू के कारण वो हम उसको ऑपरेट नहीं कर रहे फिलहाल। इसलिए शहर के बीचों बीच हमने भी एक दूसरा हॉस्टल रखा है लेडीज गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन वो भी हॉस्टल ठीक नहीं था, लेकिन जैसे भी फर्स्ट ईयर चलाया गया। लेकिन अभी देखिए कैसा है, वो जो है ना वो वहां पे वो ऐसा एक जैसा कॉलेज में हॉस्टल वेल बिल्ट है, सभी फैसिलिटीज करके रखा हुआ है वैसा, और वो शहर में है वैसा, उसमें तो फर्क रहने वाला है, क्योंकि वो एज ए हॉस्टल नहीं कन्वर्ट किया गया है एक बहुत बड़े इसको मतलब घर को उसको हॉस्टल में। जी जी, वो तो ऑक्युपाइड किया गया, या तारणी मैडम का ही है वो। हाँ, इसीलिए वो दिक्कत है। वो लेके उसको मॉडिफाई कराई है अपना, जैसे भी जो भी है। लेकिन एक कॉलेज कैंपस के अंदर अभी वहां पे हो रहे हैं, पूरा कॉलेज के आजू बाजू में सब तरफ फ्लैट स्कीम बन रही है, तो होपफुली ये साल 2 साल में उसको हम ऑपरेट कर देंगे। पूरा बन के तो तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास रेडी है। अगर वहां पे हो तो वहां पे क्या फीस वगैरह क्या लगेगी उसकी? वो बाद में डिसाइड किया जाएगा जब भी बनेगा। उल्टा तो अभी प्रॉब्लम तो ऐसा हुआ कि हमने इतना सारा बना के रखा और वहां के गेट वगैरह से लेकर सब चोरों ने चोरी करके ले गए, कोई वहां रहता नहीं इसलिए। जी जी, हाँ, तो ये दिक्कत हुई वहां पे, जबकि वो इतना वेल फर्निश था कि हर रूम में कॉट, ये वो सब, वो कॉट भी ले गए। अच्छा, चलिए ठीक है, आप कराइए थोड़ा सा, एक वहीं पे कोई कॉलेज के पास कोई हो तो इन लोग को करवा दें। वहाँ बहुत हाँ, दूर अभी कॉलेज के पास ना एक बहुत अच्छा फ्लैट स्कीम तैयार हुआ है, बिल्कुल कॉलेज के पास है। ये बच्चे अगर यदि वहाँ कांटेक्ट करे तो आसानी से मिल जाएगा। तो आप कांटेक्ट नंबर वगैरह दे दी, या आपके पास हो तो एकदम सामने है, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, उनका ऑफिस भी है। नहीं, बेटी तो यहाँ पे आ गई, आप बात कर लीजिए। अभी वो आएंगे ना अगले बार से, तो मैं उनको बताऊंगा। नहीं, एक बार बात कर लीजिए, अभी जो है ये बता रहे हैं, आप नंबर वगैरह प्रोवाइड करा दीजिए वहां से। तो और ये लोगों का उनको आपस में चर्चा करके पूछ लीजिए कि वो लोग कब से आना चाहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में जाने का निर्णय उनका था, हमने आखिर तक पढ़ाया उनको। फिर उनकी बैच ने ही निर्णय लिया, तो हमने उनके ऊपर जबरदस्ती नहीं किया।
नहीं नहीं ठीक है, वो तो जब सिचुएशन ठीक नहीं है तो वहाँ रुकने से कोई फायदा। हाँ? और नागपुर कैसा एकदम हॉटस्पॉट बना हुआ है फिलहाल के लिए पूरे देश में। वही बता रहे हैं ना, ये तो वहाँ पे अभी जाने लायक नहीं है, तो इसलिए बड़ी दिक्कत है। आप अभी नहीं, मतलब महीने 2 महीने में जब सिचुएशन ठीक हो जाएगा। शायद ये वातावरण सुधरने की संभावना है, जैसे ही सुधर जाएगा वैसे आ जाइए। हाँ तो इनको वहीं प्रोवाइड करा दीजिए कॉलेज के पास। बिल्कुल बिल्कुल। जब बात की और नंबर वगैरह हो तो आप प्रोवाइड करा दीजिए। उनके पास है नंबर मेरा। हेलो, हाँ लल्लू आओ तो। Hello. हाँ, Good morning, sir. Sir Good Snigdha morning. here. How are you? Uh, Is everything yes, fine sir. there? Sir, yes, sir. Not everything is fine. Can't say that. But sir, regarding scholarship forms, I asked for it many a times, and what I got to know is Whom did you ask? that for students who are out of Whom did you ask? Maharashtra, First tell me, whom did you ask? the Chandrakant sir. So better you ask More madam And regarding scholarship. Okay. yes, sir. Better you ask More madam regarding scholarship. Yes, sir. Hmm. Okay, sir. Okay, Because okay. sir, I asked and what I got to know is that first sir told that you should try, and if there would be any chance, you'll get it. And I'm not getting what you are saying. What you want to communicate? What you want to hello, convey? I'm not getting. सर महाराष्ट्र के बाहर के बच्चों के लिए कहा गया कि आपको स्कॉलरशिप मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है. No, Why first is thing I that tell so, you, sir? And the policy of the government for the out of state students is that the out of state students, they are treated as from the open category, and for open category there is as such no provision of scholarship, but there is one provision for scholarship for girls. Under that you can apply. yes, sir. Okay, sir. Thank you very much, sir. Is there any more questions? Otherwise, we will stop here and we will meet again at 11:30.
Any more parents? Let's conclude. Actually, I was expecting some questions regarding the course and curriculum. If some of them are interested, what this course is all about and what are the career prospects. But as there were no queries from anyone, we will conclude here, and we will interact with students in the afternoon session. And in the meantime, from 12 to 1, I think there is a lecture for Vadatu Sanskritam. There will be an introduction to the Sanskrit. After that, there will be a 1 hour gap for lunch break, and we will meet again. So I request Mrinal Dange Madam to take further proceedings. Sir, what can we take further for departmental video or anything else? Yes. What can we take now? Departmental videos or students introduction? Can we take student introduction or staff introduction? What is in your agenda? Staff Sir, introduction? now staff introduction is better. So carry on. Okay, One sir. by one, you can all teachers, they can introduce themselves. Okay, sir. Now I request. Start from yourself, first year faculties. Okay. Myself, Dr. Mrinal Dange. I am from the Rachna Shari department, which is a anatomy department. This is a subject of first year, and very interesting subject for student, mainly dissection, and we will take it by live after you will come back to our college attending sessions. So thank you very much. All the best for your future. Now I request Dr. Priya Madam to introduce yourself. Please, Priya Madam from Kriya Shari department. Hello. Priya ma'am. Hello. Yes, welcome. Good morning, madam. Hello. Please introduce yourself. Madam, you are not audible. Hello. Ma'am, your voice is breaking. Hello. Now, ma'am, am I audible? Hello. Yes. Hello. Yes. Hello. Yes, you can go forward. Yes, ma'am. Okay. Yes. Good morning, everyone. This is Dr. Priya Meshram, lecturer of Kriya Shari department, and Dr. Raviraj Pardesi sir is a professor and HOD, and in Kriya Shari we are going to study blood related practicals, and Kriya means function of the body. So all the course will be of various different organs and body parts. So we are going to study this in Kriya Shari. Okay, thank you, ma'am. Now we will welcome the Dr. Raviraj Pardesi, which is the HOD of the Kriya Shari department. Please introduce yourself, sir. Sir, please. Good morning, students. This is Dr. Raviraj Pardesi. I'm a professor in physiology and will be teaching Kriya Sharir, which is known as a physiology in Ayurveda. And we will be studying physiology from both Ayurvedic and modern perspective. And let me tell you that physiology is your foundation, because based on that, you will further study pathology and medicine also. So what disease is termed as? It is termed as an alteration in physiology. So if physiology goes wrong, one will fall ill. And if you are able to restore that physiology again, restoration of physiology is what health is. So from that perspective, it is important to learn each and every component of human physiology. Okay. So we will enjoy learning together
for a rest of 1.5 year. Thank you all. Thank you, sir. Thank you so much. Now I welcome Dr. Preeti Sahu, madam, from the Sahitya department. Please, ma'am, please introduce yourself. Good morning, students. Am I audible? Am I Yes, you are audible? audible. Yes, sir. Yes, yes, ma'am. Okay, thank you. Good morning, students. I am Dr. Preeti Sahu, Professor HOD, Sahitya Siddhant Department. In first year, we have three subjects: Sanskrit, Padarth Vigyan, and Ayurved Ityas. 2 papers of Padarth Vigyan and Ayurved Ityas, and 1 paper of Maulik Siddhant and Ashtang Hriday Sutrasthan with Viva. And you will study all 3 years Sanhita, and with your relation with your Sanhita department is lifelong, even after graduation in PG also, and when you are practicing. That's you have to study Sanhita lifelong. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Now I welcome Dr. Pratibha Pandu, ma'am, from the Sahitya department. Please, ma'am, please introduce yourself. Yes. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Good morning, student. Myself, Dr. Pratibha Panda, Assistant Professor in Sahitya Siddhant Department. As ma'am say, Dr. Preeti Sahu ma'am, there are 4 papers in first year. I am Padarth Vigyan teacher for first year, and we will meet soon in online classes. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Now, Preeti Gaukar, ma'am, please there, ma'am. I would like to introduce yourself. Preeti Gaukar, ma'am. Hello. She's not here. She's suffering from COVID. Okay, sir. Now, is there Shende, ma'am? No, she's Shende, also ma'am? suffering from COVID. Okay, Yes. okay, sir. Next, we will shift to Dr. Sachin Borkar, sir, from the Rog Nidan department. Dr. Sachin Borkar, sir. Hello. Hello. Good morning, all. Am I audible, madam? Yeah, Yes, Sachin. yes. You can continue. Okay. Good morning, sir. I am a lecturer in Nidan department, and in Nidan and Vikruti Vidyan, we study fundamental of Nidan, and in Vikruti Vidyan, we study the all diseases in detail, and in practical, we perform all experiments. And apart from this, we also do a clinical posting where student will learn how to take history and examine, and this will build patient doctor relationship, which will useful to all over your clinical, to improve your clinical experience. Thank you. Myself, Dr. Subhash Wage, HOD of the Rog Nidana subject, and as my friend Dr. Ravi Pardesi has rightly told, that alteration in physiology is the pathology. So we deal with the pathology. We are one step ahead of the physiology. When there is alteration, normal physiology is altered, that results in pathology, and we deal with the pathology. So Ayurvedic pathology, modern pathology, not only the pathology of various diseases, but the diseases in clinical terms, their clinical methods, how to examine the diseases, then how to diagnose the diseases with 5 elements of diagnosis of disease. Those are Nidan, Purvarup, Upshay, Anupshay, Samprapti, etc. Those terminologies you will come across as etiology, prodromal features, pathogenesis, and the therapeutic trial. And the various modes of diagnosis of disease: inspection, palpation, percussion, auscultation, etc. with respect to all the systems, and the modern diagnostic procedures such as ECG, X-ray, CT scan, MRI, etc. And the Panchanidanatmak diagnosis of all the diseases. And in terms of Vikruti of the doshas, dhatus, other day I oriented you in the group about the doshas,
dhatus and malas. The vikruti of those dhatu mala we will see from Ayurvedic point of view and as well as from modern point of view also. So with this, I hand over the mic to the next faculty for the introduction of second year batch. Okay, thank you, sir. Now the Dr. Ketki from the Agat Tantra department. Dr. Ketki. Dr. Ketki is there? Ma'am, please switch on your mic. Good morning, students. I am Dr. Ketki Nirmal from Agat Tantra department. Agat Tantra is your second year subject. In Agat Tantra and Vidhi we are going to study about the toxicology, forensic medicine and medical jurisprudence. You will know in future in detail detail about that subject. And in this subject, we will visit the courts, we will demonstrate the post-mortem, we will study in the details medical management of poisoning, toxicology, emergency medicine. So, welcome to our college. Thank you, ma'am. Thank you so much. Now, Dr. Gauri Shankar Urkude, sir, please introduce yourself, sir. Dr. Gauri Shankar, sir, are you there? Hello. Hello. Yes, ma'am. Yes, welcome, sir. Please introduce yourself. Hello, everybody. Myself, Dr. Gauri Shankar Urkude, Associate Professor, Department of Swastha Rutta. Swastha Rutta means it is comprises of the two words. First is the Swastha and other is the Rutta. Rutta means a status of your healthy life, right? This subject basically teaches you how to maintain your personal health as well the social health. We all are right now going through a huge pandemic where you need to learn how to maintain the social health, right? So this subject particularly teaches you regarding the communicable, that is a disease जिसको हम संसर्गजन्य रोग कहते हैं, उस प्रकार के डिसीजेस से फाइट करने के लिए आपको ये एक अच्छा चांस देता है. And at the same time, this subject contains like the yoga, diet, how to maintain your physical health, right? And I assure you that this subject will give you a chance to fly globally. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Now the Dr. Yogeshwar Tikle, sir. Is the Yogeshwar Tikle, sir? Please introduce No, he's not yourself. here. Okay, sir. Okay, sir. Now next You can is go. You can go to Jangla madam. You can ask. which sir? Kripali madam. In Swastha Rutta department. Okay. Ma'am, are you there? Hello. Yes, I am. Yes, Yes, I am here. ma'am. Welcome, ma'am. Please introduce yourself. Myself, am I audible, ma'am? Yes. Okay. Myself, Dr. Kripali Jangle, Assistant Professor in Swastha Rutta Department. Already Urkude sir gives the brief information about the Swastha Rutta Department. In modern terms, the Swastha Rutta is called as preventive and social medicine. Our subject deals with personal hygiene, preventive hygiene, and yoga sciences. So, in our subject, the practical sessions about yoga are taken, and then in the personal preventive measures, we deals with the seasonal regimen and our daily regimen. These are all included in our subject. And in the community health, how to prevent the communicable diseases, and how to control and prevent, and what the general measures should be taken. All these things are included in our subject. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. Now I welcome the Dr. Shrikant Hadole, sir. Please introduce yourself, sir. Yeah, very good morning, all of you. I'm Dr. Shrikant Hadole, Assistant Professor in the Department of Dravya Guna Vigyan. Students, the Dravya Guna Vigyan is a subject from the second year syllabus.
The Dravya Gun Vigyan is one of the best subject amongst the subject throughout the syllabus of BMS, because it is the only subject where you will be learning most of the things outside the classes. For example, in the college herbal garden, in the visits to various forests, various other departments where the biodiversity or medicinal parks have been created. So it is the wonderful subject which you will be learning in the second year. So it's all about the medicinal plants, its properties. So you will enjoy learning Dravya Guna in the second year. So thank you. Just Thank best you of so luck. much, sir. Thank you so much. Now, next we will introduce Sheetal Gharatkar madam. Dr. Sheetal Gharatkar madam is there, ma'am? Hello. Hello. Dr. Sheetal Gharatkar ma'am. Okay. I think she is not there. Now I will introduce Dr. Amit Barbudya sir. Dr. Amit Barbudya sir from Panchakarma Kaya Chikitsa department. Hello. Hello. Dr. Vaishali Thakre ma'am from Shalakya department. Dr. Vaishali Thakre ma'am. Yes, ma'am. Yes. Welcome, ma'am. Myself, Dr. Vaishali Thakre. I'm the assistant professor in Shalakya Tantra department. Shalakya is one of the clinical subject of the final year. In short, Shalakya means ENT plus ophthalmology. Rest of the subject we will discuss in final year. Thank you. Ma'am, thank you so much. Thank you. Dr. Vaishali ma'am from the Kaya Chikitsa. Dr. Vaishali ma'am. Dr. Vaishali Meshram ma'am from the Kaya Chikitsa department. Dr. Sangeeta Jain ma'am. Is there, ma'am? Dr. Sangeeta Jain ma'am from the Kaya Chikitsa department. Hello. Is there anyone teachers who are available here to introduce yourself? Hello. Hello. Am I audible? Yes, You ma'am. are audible. If no more teachers are available, they can introduce themselves in afternoon session also. Okay, sir. Okay, sir. I think if all have finished with the introduction, we will stop here, and Okay, we will meet again at 10:45. Okay. I think no, sorry. 11:45. Sir. Our 11:45. Our The session is from 12, na? Yes, sir. Our next session Next is session? Sanskrit. Vadatu Sanskrit. For students. So we will meet the students with the students will meet on 11:45. So please, student will be available for the 11 to 45. Please take a break and enjoy. Okay, we will stop here. Okay, sir. Thank you, sir. रखो उसको 40 वो रहते स्टैंड कहाँ है स्टैंड कहाँ है अभी खत्म कर रहे हैं सर, अब 12 बजे होगा जूनियर्स के साथ। बताई थी तुम मुझे क्या? ये तो कल पता हो